Hi friends, today the chapter is the French Revolution and the idea of nation. Yes, the rise of nationalism in Europe means that the people got the abolishment of monarchy and established of democracy was there. Now the the line I am going to read about that the French clear expression of nation come with French Revolution in 1789 means that the people got the French Revolution was in the year of 1789. France, as you remember, was a full terrestrial state means it was under the rule of monarchy. मतलब राजा महाराजा के शासन में हुआ करता था पहले फ्रांस. The political and constitutional change that came in the wake of a French Revolution to lead to the transfer of sovereignty from monarchy to the transfer of body of the free citizen means उनका जो रेवोल्यूशन था फ्रेंच क्रांतिकारी एक दिन उनके चेहरे पर रंग लाया कि ये रेवोल्यूशन हमें करके मोनार्की राजा महाराजा का शासन को हटा करके क्या हुआ कि उसके बाद उसके चेहरे पर रंग आया कि राजा महाराजा का शासन तो अब हट गया है. अब ताकत हमारे हाथ में है. हम जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे वही हमारे लिए होगा. और मैं आपको एक चित्र आई विल गोइंग टू शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ बिग रैली ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द किंग crown was thrown and many of the king all the king thing was thrown in the field in the rally. The people was holding all the national countries flag and going to the rally for the French Revolution. This is the picture for and the God is blessing them. This picture indicated this. Now we are going to see the picture now. This picture of a French Revolution, the picture of a wrong lady and everyone is holding the flag of the country and the God is blessing them, and here in one white statue in front of the tree. It is white in color and the God is blessing all of the people to getting for the French Revolution. Now, from the very beginning, the French Revolution introduced various measures and practices that could create a sense of identified amongst the French people. The idea of life party, the fatherland, and the lay citizenship, the citizens emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new flag, the tricolor, was chosen to reflect from a royal standard. The state general was elected by the body of active citizenship. The rename of the National Assembly, new hymns were composed, oath taken, the martyrs commended, all in the name of the nation. Means that in the French Revolution and the idea of nation was come. French Revolution started in 1789, which was the first nationalism in Europe. French people demanded an abolishment of monarchy and establishment of democracy. Means that वो चाहते थे कि राजा महाराजा का शासन को हटाया जाए और डेमोक्रेसी शासन लाया जाए. मेजर चेंज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन लाई पार्टी, वहाँ का जो नाम दिया गया वो मुझे तो फादरलैंड हमारा मातृभूमि, उनके पितृभूमि. ले सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिक. इम्फोटाइज यूनियन कम्युनिटी, सबको एक बराबर राइट होने चाहिए. पावर ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्क टू द कॉमन पीपल, मतलब कि मोनार्क का पावर गया और क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी का पावर आ गया. इंट्रोड्यूस द न्यू फ्लैग, उसी के साथ एक नया झंडा बनाया गया, नया एंथम बनाया गया, शपथ ली गई. स्टेट जनरल elected by the common people and renamed National Assembly. मीत स्टेट जनरल elected by the common people. मतलब कि क्या हुआ कि स्टेट जनरल जो था वह कॉमन पीपल आम नागरिक द्वारा चुना गया था. इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज वर सेलेक्टेड,
obliged internal duties were obliged. Nationalism idea was taken aboard by the French Revolution. Yes, national idea was come in a French Revolution. Now this is our shortcut. Now I am going to giving you a chart for this. A point by point I am giving you a point of this French Revolution, the making of the idea of a nation. See the points. These are the points I am going to see you about chapter 1. See the rise of nationalism in Europe. Notes: the French Revolution started in 1789, which was the first nationalism in Europe. Mean that फ्रांस क्रांति 1779 में स्टार्ट हुआ था, 99 में, विच वॉज द फर्स्ट, जो पहला राष्ट्रीय एकता था फ्रांस के लिए, है ना. दूसरा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल डिमांडेड अ एब्लिशमेंट ऑफ मोनार्च एंड एस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी. मीन दैट द पीपल वांट दैट द एब्सोल्वमेंट ऑफ मोनार्च शुड बी, मतलब मोनार्की को हटाया जाए, राजा का शासन को हटाया जाए और डेमोक्रेसी बैठाया जाए. उसके बाद मेजर चेंज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाई पार्टी, द फ्रेंच, द फादरलैंड एंड द लाई सिटीजन, द सिटीजन ऑफ द कंट्री. मतलब कि हमारे जैसे इंडिया में मातृभूमि भारत माँ, तो वहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे पितृभूमि, वहाँ का भी फादरलैंड बनाया गया. और ले सिटीजन, जो क्या बोलता है, देश के जो नागरिक थे वो बनाए गए. पावर ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्च टू द कॉमन पीपल, मतलब कि मोनार्च थे, मतलब कि राजा महाराजा का शासन हट गया. अब पावर किसके हाथ में आ गया, नागरिक के हाथ में, पीपल्स के हाथ पे, है ना. इंट्रोड्यूस्ड द न्यू फ्लैग, एक नया फ्लैग को कंपोज्ड किया गया. यस, अ न्यू फ्लैग हैज़ बीन कंपोज्ड. न्यू नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड एंड ओट टेकन, नया राष्ट्रीय गान, एक झंडा को वो लोगों ने नया झंडा बनाया गया, है ना. उसके बाद न्यू नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड, नया नेशनल एंथम कंपोज हुआ. स्टेट जनरल वर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रीनेम्ड, नेशनल असेंबली बनाया गया, है ना. इंटरनल कस्टम ड्यूटी पर एलोबजाइज, मतलब कस्ट की जो सबको ड्यूटी दिया गया, वहाँ पे कोई ये नहीं, मतलब बेरोजगारी नहीं रहेगा. नेशनलिज्म आइडिया टेकन अबोर्ड बाय द फ्रेंच आर्मी, मतलब कि फ्रेंच आर्मी बनाया गया नेशनलिज्म आइडिया लेके, है ना. यही थे इनके सारे पॉइंट फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फर्स्ट चैप्टर के थे. आपने इस पॉइंट को अच्छा था, आपको याद कर लेना है इस पॉइंट को, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है. सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, है ना. सब लोग डेमोक्रेसी से बहुत ही खुश थे. उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, इन 1799 नेपोलियन आ गया. नेपोलियन जैसे फिल्म में एक नया रोल आता है, यहाँ पे भी एक नया खुशखबरी आ गया. बहुत दुख हो गया, लोग कह रहे कौन आ गया, कौन रूल लेके आएगा भाई ये. नेपोलियन सीज पॉलिटिकल पावर, उसने सारा पॉलिटिकल पावर को सीज कर दिया. वो अपना सिविल कोड लाया, सिविल कोड ऑफ 1804, उसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है. एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नेपोलियन कोड, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नेपोलियन कोड, 1804. उसने फिर आगे यहाँ पे बहुत सारे रूल बनाए. और वो कौन से रूल थे भैया, तो उसका रोल था द रूल्स वर दैट, पॉजिटिव रूल्स था. उसके बाद में नेगेटिव रूल्स था. पॉजिटिव रूल्स क्या है, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सबको समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है. राइट टू प्रॉपर्टी, जिस सबके पास एक इक्वल ज़मीन होनी चाहिए, जैसे ना कि जिसके पास ज़्यादा उसके पास कम, नहीं, सबको इक्वल होना चाहिए. फेडरल सिस्टम व रेवोल्यूशन, मतलब जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया उसने. मतलब कि कोई ज़मींदार के अंदर जो सारे ज़मीन होते थे, जो खटता था, उसका आगे जो खटा जाता था उसको आगे ख़त्म कर दिया. फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेफडोम, मतलब कि पीजेंट को आज़ाद कर दिया गया. गैर रिस्ट्रिक्शन विद रिमूव्ड, मतलब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन विद रिमूव, मतलब कि घुसखोरी सिस्टम को हटाया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो मतलब कि आदमी को चलने वाले के लिए अच्छा व्यवस्था कर दिया. नेगेटिव रूल्स का वही था, बहुत गुस्सी वाली. टैक्स बढ़ा दिया भाई, सेंसरशिप विद इम्पोस्ट. सेंसरशिप इम्पोस्ट समझे आपने क्या, कि यही कि उसके खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा वो मर जाएगा. फोर्स टू जॉइन, सबको फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करना होगा. इन 1845 में सब लोग, इन 1815 में क्या हुआ, सब लोग उससे जलने लगे, बहुत को से जलने लगे, बहुत को नेशनल से जलने लगा. तो बैटल ऑफ वाटरलू हो गया.
बिटवीन नेपोलियन एंड प्रेप। प्रेप में बहुत सारे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन है ना। उसमें क्या हुआ कि नेपोलियन हार गया, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ उसमें, और फिर से क्या बोलता है कि मोनार्की सिस्टम को ले आया। उसके बाद क्या हुआ, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिज्म आ गया ना, नेशनलिज्म यूरोप आ गया। टिल द मैट्रिन सिस्टम देयर विद नो, कोई ना राज्य स्टेट ना रहा, उसी बीच कुछ डेवलप हुआ था। पहले तो हम लोग जानते थे कि पहले की अरिस्टोक्रेसी था और पीजेंट्री था। उसके बाद क्या डेवलप होने के बाद क्या गया, डाइवर्सिटी में 3 भाग में बढ़ गया, पीजेंट, अरिस्टोक्रेसी, और लास्ट में आया मिडिल क्लास, जो थोड़ा पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा था, है ना। उसके बाद उसको 3 भाग में बांटा गया। क्या, पहला भाग था अरिस्टोक्रेसी, दूसरा था पीजेंट्री, तीसरा था मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के पास क्या था, हाई क्लास लैंडलॉर्ड था, लेस पॉपुलेशन था, है ना, डोमिनेटिंग, सबको दमा कर रहता था, उसके पास ऑल राइट था, ठीक है। और पीजेंट्री में क्या था, लो क्लास लैंडलॉर्ड था, लो क्लास लैंडलॉर्ड था, मोर पॉपुलेशन, नो राइट। और मिडिल में क्या था कि आपका, कि मिडिल वाला को तो बहुत दिक्कत है ना, उन लोग के मिडिल वाला को तो थोड़ा दिक्कत भी था। एजुकेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्जाम्पल मर्चेंट, लॉयर एंड टीचर ऑफ यूरोप, स्टूडेंट फॉर्म ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज फॉर्म। Yes, this was the making of nationalism in Europe. Now, I am going you to give some important dates. You have to nationally learn this. Yes, see the national dates. These are the some important dates. 1797 में क्या हुआ, नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियनिक वार बिगिन। पहले नेपोलियन ने इटली में राज हुआ, फिर इटली से मार के भगा दिया गया नेपोलियन को। 1814 to 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वेना प्ले सेटलमेंट हुआ। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। 1848 में रिवोल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्कर एंड पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल and representative government, Italians, German, Magyars, Poles, Czech demand national state। 1859 to 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और सब इटली एक हो गया। 1866 to 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चला। 1905 में क्या हुआ, स्लैब नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोनम एम्पायर। यस, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेट्स।